If Mamata Banerjee wouldn't have gone this far and fought this hard, they had the clear intentions of deleting 1.25 crore people as suggested by their leader of opposition. I remember him saying that 1.25 lakh people, 1 crore 25 lakh people are going to be deleted. And the Election Commission is working at the behest of the Bharatiya Janata Party. And I've said this earlier, and I'm going to reiterate the fact that Bharatiya Janata Party is using Election Commission as a tool. The Election Commission of India is not the Election Commission of India. It is the Election Commission of the Bharatiya Janata Party. All these people who have been appointed, all these people, I would like to show Arindam Dakua, Gandham Chandrudu, Dheeraj Kumar, Ajay Katesaria. Who are they? Why have they been appointed? What is the point of interest? I would urge all of you to go and check the background of all these people. They are obligated to the Bharatiya Janata Party. Hence, they have been sent here to work at their behest. This is not the way you control an election procedure. This is not the way you execute things. The Bharatiya Janata Party has used the Enforcement Directorate, the CBI, different agencies, different commissions, Income tax, NIA, everything. They have used everything against Mamata Banerjee. When nothing worked, they implemented SIR within 2 months before going to the elections. And now when they understand कि इसके बाद भी हवा उल्टा है, ममता बनर्जी के प्रति देश के सबका समर्थन है, बंगाल के सबका समर्थन है, तो आगे जाके देखिए इन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं कि भाई साहब आप लोग जाओ और वहां पे दहशत फैलाओ, हमारा आंख कान हाथ हिसाब से आप काम करो, हमको इंफॉर्मेशन दो, हमको इनपुट दो, और कैसे कैसे हर स्टेज में हर स्तर में हम इस सरकार को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ममता बनर्जी को डिस्टर्ब कर सकते हैं. Help us. So this is the way you're going to function. The people of Bengal are going to answer by deleting lakhs and crores of legitimate voters by whose votes you have been elected to power. इन लोगों ने वोट दिया तब जाके तो आपको भी मिले ना, 18 MP तो आपको भी मिले, देश के प्रधानमंत्री तो आप भी बने. तो ये वोटर्स आज जिनको आप बंगाल से जिनका नाम काट रहे हैं, अगर वो इलेजिटिमेट है तो आप भी इलेजिटिमेट है, তো आपका सरकार भी ইললেজিটিমেট है. আর আমরা তো দেখব যে কত রোহিঙ্গা, কত বাংলাদেশি আপনারা তো বলেছিলেন ডিফাইন, ডিলিট, ডিপোর্ট, তো কতজনকে পুশব্যাক, কে কাকে পুশব্যাক করবে বাংলার মানুষ বলবে. আপনারা বাংলার মানুষকে পুশব্যাক করবেন না বাংলার মানুষ আপনাদের পুশব্যাক করে যমুনার ওপরে পাঠাবে, সেটার কয়েকদিনের অপেক্ষা আপনারা দেখতে পাবেন. সাধারণ মানুষকে হ্যারাস করা, তাদেরকে ভয় দেখানো, আজকে 200-র উপর লোক মারা গেছে. জ্ঞানেশ কুমার এয়ারপোর্ট দিয়ে ঢুকছে, নিজেকে হিরো মনে করছেন, হাত নাড়াচ্ছেন, হি ইজ আ স্টার ক্যাম্পেইনার অর হোয়াট? শুভেন্দু অধিকারী কালকে বলছেন 177টা সিটে আমরা জিতবো. হাউ কনফিডেন্ট আর ইউ? হাউ ডু ইউ নো? নাও আর ইউ গোইং টু প্লে উইথ দ্য ইভিএমস? আর ইউ গোইং টু প্লে উইথ দ্য মেশিন? লোকে বলতে পারে, আগে বলতো 200 পার, अब की बार 200 পার. মমতা দি বলতে পারে যে 2026-এ 226টা সিট আমরা পাবো. হাউ আর ইউ সো শিওর যে 177টা সিট আপনি পাবেন? সেটিং হয়ে গেছে নাকি? মেশিন ফিক্স হয়ে গেছে? যেরকম বলেছিলেন যে 1,25,00,000 মানুষের নাম বাদ যাবে এবং ইলেকশন কমিশন আপনাদের অঙ্গুলি হেলনে কাজ করছে, ये तो ट्राइड और टेस्टेड है. और हम अपनी आशंका बोल रहे हैं कि बंगाल में साम दाम दंड भेद सब कुछ तो ट्राई कर रहे हैं आप. कोई एजेंसी बाकी नहीं है, कोई कमीशन बाकी नहीं है. इलेक्शन कमीशन अभी आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया है, आपके बेस में काम कर रहा है. इसके बाद भी अगर आपको लगे कि हवा उल्टी तरफ है, आपको समर्थन नहीं मिलने वाला है, तो लास्ट रिसोर्ट क्या बचेगा? आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहे हैं कि हमको 177 सीट मिलेगा. आपको कैसे पता? किसने बताया आपको? आपको किसी ने बताया या आप किसी को बता रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए? 1,25,00,000 नाम उसको काटेंगे आप SIR के माध्यम से, SIR की प्रक्रिया के माध्यम से. किसने बोला था? लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, बीजेपी के लीडर ने, मंत्रियों ने बोला था. उस हिसाब से ज्ञानेश कुमार जी काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही है. हालांकि ये अलग बात है कि ममता बनर्जी के रहते हुए वो कर नहीं पा रहे. तो आज अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सबके सामने बोलते हैं, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, 200 से ज्यादा नहीं बोल रहे 177. तो हाउ कम आर यू सो कॉन्फिडेंट? फिक्सिंग हो गया है क्या? सेटिंग हो गया है? और जो पहले आपका प्रश्न था, इट इज फॉर यू टू ऑल्सो थिंक
कि बंगाल से बंगाल का एसेंस लेके जाना. बंगाल, because the BJP quintessentially hates Bengal. It hates Bengalis. They say that people who speak Bengali are Bangladeshis. Bengalis are tortured in other BJP ruled states. डरपोक हिंदू बोलता है। हिंदी में अगर राम राज्य आएगा नहीं, यहाँ पे राम राज्य ही है, यहाँ पे दुर्गा राज्य है. बंगाल माँ काली की मिट्टी है, पश्चिम बंगाल माँ दुर्गा की मिट्टी है. और राम जी किसकी आराधना करते थे आपको पता है ना? दुर्गा जी की आराधना करते थे. तो यहाँ पे बंगाल में महिलाओं की चलती है, दीदी की चलती है. और हमें राम जी से कोई बैर नहीं है. श्री राम हमारे मन में रहते हैं, उनको हमको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए स्लोगन हिसाब से यूज नहीं करना पड़ता है. तो भारतीय जनता पार्टी राम भरोसे रहे और ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के भरोसे रहेंगी. राम राज्য আবার কি? বিজেপি যারা বলছে বললাম তো, বিজেপি যারা বলছে যে এক মুখে বলছে রাম রাজ্য হবে আর অন্যদিকে বলছে বুলডোজার চলবে আর এনকাউন্টার হবে. Isn't it contradictory? ये एक हिसाब से आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे राम राज्य हम स्थापित करेंगे और दूसरे साइड में आपके लीडर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे एनकाउंटर होगा बीजेपी आने के बाद और बुलडोजर चलेगा. कि राम नाम, ये शब्द राम जी का नाम बुलडोजर और एनकाउंटर के साथ जाता है क्या? आप लोग खुद को, यू हैव मेड अ जोकर आउट ऑफ योरसेल्फ. द पीपल ऑफ इंडिया आर लाफिंग एट यू. You don't want to discuss inflation. You don't want to discuss joblessness. You don't want to discuss poverty. You don't want to discuss important bills. You don't want to talk about LPG shortage. You don't want to talk about your Videsh Niti. You don't want to talk about anything that is important. You just want to do Ram Rahim, Hindu Musalman, India Pakistan. ये 4-5 वर्ड हटा दीजिए ना बीजेपी की डिक्शनरी से. कोई एक नेता नहीं है जो एक शब्द बोल पाएगा, एक लाइन तक नहीं बोल पाएगा. आप हिंदू हटा दीजिए, मुसलमान हटा दीजिए, आप इंडिया हटा दीजिए, पाकिस्तान हटा दीजिए, धर्म हटा दीजिए, बांग्लादेशी हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए और फिर बोलिए किसी बीजेपी लीडर को कि आप एक भाषण दीजिए. आप देखिए वो कितनी देर टिकते हैं. जो आरजीकर के विक्टिम के पेरेंट्स है, उनका मदर को टिकट दिया है बनियाटी से, क्या कहेंगे? ये हमारे मिनिस्टर साहब ने बोला है, ब्रातोदा ने, कि आप विचार किससे मांग रहे थे, जस्टिस किससे मांग रहे थे? आपको तो सीबीआई पे भरोसा था ना. और जब तहकीकात हुई और जो आया सामने तो उससे आप खुश नहीं थे. देश के गृह मंत्री आए, वो उनको 1 मिनट वक्त नहीं मिला गृह मंत्री को कि वो आपसे मिले. आपने अपनी बेटी खो दी, अपना सम्मान खो दिया और आज आप बीजेपी के साथ मिलकर आप बोल रहे कि मुझे जस्टिस चाहिए. अगर जस्टिस चाहिए तो सबसे पहले ये बोलिए कि सीबीआई को तहकीकात फिर से जांच करे और इस केस को निष्पत्ति दे. ये होगा बीजेपी का पहला कमिटमेंट. टिकट देने से जस्टिस नहीं मिलता है, कैंडिडेट देने से आपकी बेटी को जस्टिस नहीं मिलेगा, तहकीकात होने से मिलेगी. और जो तहकीकात ममता बनर्जी की सरकार ने डे 1 से किया है, बीजेपी ने नहीं किया है. उसने आपको एक पॉलिटिकल टूल के हिसाब से इस्तेमाल किया है और ये आज एक्सपोज हो गया है. जैसे ब्रातोदा बोल रहे थे कि सामने एक क्या बोलते हैं, वेल था, एक पर्दा था, मुंह दिखाई नहीं देता था, चेहरा दिखाई नहीं देता था. नकाब. आज नकाब खुल गया है और उनके जगह बीजेपी का चेहरा आ गया है.